کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے، ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم روحانی زندگی کس طرح بسر کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا خدا قدوس جو ہے، ان کا کلام ان کے نبیوں کے ذریعے سے، ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے، شاگردوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، ہم تک ان کی بلاہٹ جو ہے پہنچائی جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس بلاہٹ کو اپنے لیے قبول ٹھہراتے ہیں، اس بلاہٹ کو جو ہے قبول کرتے ہیں، اس کلام کو جو ہمیں پہنچایا گیا ہے، دیا گیا ہے، سنایا گیا ہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو خدا قدوس کے ہم چنے ہوئے فرزند جون سا ہے، قوم جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں۔ اب ہم اس کلام کے ذریعے سے جو ہم نے اپنایا، جو ہمارے تک پہنچا، ہم اس کلام کے ذریعے سے خدا قدوس کو جاننا شروع کرتے ہیں۔ ہم ان کے احکام، ان کی شریعت، ان کے آئین کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں، سیکھتے چلے جاتے ہیں، تو ہمیں گناہ کی پہچان جو سی ہے وہ ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی اس زندگی کو جو ہم نے گناہ آلودہ زندگی میں بسر کی، ہمیں گھن آتی ہے۔ ہم اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ہم اس گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے خدا قدوس کی طرف بڑھتے ہیں اور توبہ کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ ہماری یہ فریاد خدا قدوس تک پہنچتی ہے، وہ اسے سنتے ہیں، اور اس فریاد کو سن کر وہ ہم پر اپنا رحم صادر کرتے ہیں، وہ اپنا فضل ہم پر دیتے ہیں اور ہمارے گناہ سے ہمیں نجات دیتے ہیں۔ ہم جو ان سے ہے اب تیار ہیں، ہمارے گناہ جو ان سے ہیں ہمارے بخشے جا رہے ہیں۔ ہم جو ان سے خدا قدوس کے ساتھ ایک نیا رشتہ استوار کر رہے ہیں، ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ زندگی نہیں جو گناہ کے زیر اثر تھی، وہ زندگی نہیں جو گناہ کی غلامی میں تھی، بلکہ آپ سے ہم نئے چنے ہوئے خدا قدوس کے فرزند کہلائیں گے۔ ہم جو ہے اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو خدا کے جلال کے لیے جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں، ہم ان کے لیے وقت کرتے ہیں۔ ہم بپتسمہ کے سٹیپ پہ پہنچتے ہیں۔ بپتسمہ ہم نے سیکھا کہ ہماری زندگیوں کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ہماری زندگیوں کی روحانی زندگی کا شروع ہے۔ ہم بپتسمہ جو ان سے وہ لے رہے ہیں، بپتسمہ جو ان سا ہے جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں جو ان سی ہیں وہ ملتی ہیں۔ بپتسمے کے ذریعے سے دو تحفے آپ کی زندگی کے اندر آتے ہیں۔ ایک تحفہ جب آپ اقرار کرتے ہیں، توبہ آپ نے طلب کی، اس توبہ کے نتیجے میں آپ نے جو ان سے ہے خدا قدوس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اس معافی کے نتیجے میں آپ کے گناہ آپ سے ہٹا لیے گئے، اتنی دور ہٹا لیے گئے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے، پورب پچھم سے دور ہے۔ گناہ آپ کے جو سے ہیں جو قرمزی تھے وہ سفید اون کی مانند ٹھہرے۔ آپ کو یہ تحفہ گناہ کی معافی کا تحفہ ملا۔ آپ کو اس تحفے کے نتیجے میں جو آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے، خدا قدوس بے یار و مددگار نہیں چھوڑ رہے۔ خدا قدوس آپ کو جو سا ہے اس تحفے کے نتیجے میں ایک اور تحفہ عطا کرتے ہیں، اور وہ تحفہ روح القدس کا تحفہ ہے۔ خدا کی پاک روح اب آپ کے اندر جو ہے وہ داخل ہوگی، اور اس پاک روح کے وسیلے سے اب آپ کی نئی زندگی جو ہے وہ بسر ہوگی۔ یہ دو تحفے جون سے ہیں، ان کو ناچیز مت جانیے گا۔ بپتسمہ جون سا ہے یہ آپ کی روحانی زندگی کا آغاز ہے۔ بپتسمہ جو ہے یہ آپ کو نئی زندگی جون سے عطا کرتا ہے، آپ کو ایک نئی روحانی زندگی کی راہ جون سے آپ کے لیے متعین کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس نئی زندگی کو پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کلام سنانے والے
خدا کے کلام کو این اسی طرح جس طرح خدا نے سکھایا، جس طرح خدا نے لکھا، جس طرح خدا نے اپنے نبی اور رسولوں شاگردوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، اس کو پہنچائیں۔ ہم رومیوں کے خط 10ویں باب میں چلیں گے اور اس کی 14 سے 15ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ رومیوں کے خط 10واں باب اور اس کی جب آپ آیت نمبر 14 سے 15 میں آتے ہیں تو کلام خدا جو ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہے، مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں، اور جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر ایمان کیوں کر لائیں، اور بغیر منادی کرنے والے کے کیوں کر سنے۔ کلام خدا کا یہ کلام جب آپ تک پہنچا ہی نہیں تھا، آپ ایمان کیسے لے کر آتے؟ آپ ایمان کا اقرار کیسے کرتے؟ آپ کو ایمان کے اقرار کے وسیلے سے آپ کو جو یہ تحفہ تھا، جو آپ کے گناہوں کی معافی کا تحفہ تھا، وہ آپ کو کیسے ملتا؟ آپ پر روح القدس جو ان سے ہے اس تحفے کے نتیجے میں کیسے نازل ہوتا؟ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ منادی کرنے والے آپ تک پہنچتے۔ 15ویں آیت بیان کرتی ہے، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائے منادی کیوں کر کرے؟ مناد کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا جائے۔ اگر مناد خدا کی طرف سے نہیں ہے تو وہ خدا کی باتیں نہیں کہے گا، اور اگر مناد خدا کی طرف سے ہے تو وہ خدا کا پیغام آپ تک پہنچائے گا، اور خدا کے پیغام جب آپ تک پہنچے گا اسی کے وسیلے سے آپ کا ایمان جو سا ہے وہ آپ کے اندر جو ہے جوش مارے گا، آپ اقرار کر اٹھیں گے، آپ توبہ کے لیے خدا کی حضوری میں جائیں گے، اور اس توبہ کے نتیجے میں آپ کو وہ تحفہ جو گناہ کی معافی کا تحفہ ہے وہ عنایت ہوگا۔ اسی لیے پالوس رسول رومیو کے خط 10ویں باب کی 15ویں آیت میں فرماتے ہیں، اور جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کر کریں؟ چنانچہ لکھا ہے، کیا ہی خوش نما ہیں ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خبر دیتے ہیں۔ کیا ہی خوش نما ہے ان کے قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں۔ کلام خدا کا شکر کہ کلام خدا کا پیغام ہم تک پہنچا، ہم نے سنا، قبول کیا، احساس کیا، معافی طلب کی، ہمارے گناہ ہم سے دور ہوئے۔ ہمارے گناہوں کو دور ہونے کے وسیلے سے ہم اب اقرار کے اوپر آ پہنچے۔ ہم آئندہ سے خدا قدوس کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، ڈیکلریشن دیتے ہیں۔ خدا قدوس آئندہ سے ہماری زندگی گناہ میں بسر نہیں ہوگی، آئندہ سے ہماری زندگی تیرے حکموں، آپ کے حکموں کو جو ان سے ہے وہ قبول کرے گی۔ آپ جیسا فرمائیں گے، جیسا آپ کا کلام کہے گا، ہماری زندگیاں اس کے مطابق بسر ہوں گی۔ اور اسی لیے جو ہے کلام خدا اعمال 22ویں باب کی آپ کو 16ویں آیت میں جو ہے وہ بیان فرماتا ہے۔ اعمال کی کتاب 22واں باب 16ویں آیت آپ کو بیان فرماتی ہے، اب کیوں دیر کرتا ہے، اٹھ بپتسمہ لے اور ان کے نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ کلام خدا آج آپ سے مخاطب ہے، آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، آپ کی نئی زندگی جون سی ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ یہ دو تحفے، آپ کے گناہ کی معافی اور اس کے نتیجے میں روح القدس جو ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ خدا قدوس کا وعدہ ہے، یہ میرے خالق اور آپ کے خالق کا وعدہ ہے، یہ انسان کا وعدہ نہیں کہ یہ دو تحائف آپ تک نہ پہنچے، یہ ان کا وعدہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ کلیسیا ان وعدوں سے منور ٹھہری۔ ان لوگوں نے جنہوں نے دیر نہ کی، اٹھے اور بپتسمہ لیا اور اپنے گناہوں کو دھو ڈالا۔ اس گناہوں کے دھونے کے نتیجے میں روح القدس کا تحفہ جو دوسرا تحفہ تھا انہیں حاصل ہوا۔ اور یہ وہ روح القدس کا تحفہ جو ہے یہ ہم سیکھیں گے کہ یہ ہمیں کس طریقے سے اس نئی زندگی میں جو ہے ہماری مددگار ٹھہرتا ہے۔
हम रोमियो के खत 8वें बाब में आएंगे और उसकी 13वीं और 14वीं आयत का मुतालिया करेंगे। रोमियो का खत 8वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत जो है कलाम खुदा से हमें यूं सीखने को मिलता है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। कलाम खुदा ने हमें सिखाया, कलाम खुदा बयान फरमाते हैं, कलाम खुदा कहते हैं कि वो लोग जो जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो लोग जो अपने आप को जिस्मानी ख्वाहिशात के ताबे रखना चाहते हैं, वो खुदा के अहकाम को रद्द करते हैं, क्योंकि जिस्मानी नीयत खुदा से दुश्मनी गर्दानी गई। कलाम खुदा बयान करता है ऐसे लोग जो खुदा के दुश्मन हैं, जो जिस्म के ताबे हैं, वो खुदा का गुनाह करते हैं, खुदा के हुक्मों को पामाल करते हैं, खुदा के हुक्मों को नाचीज जानते हैं, वो अपनी ख्वाहिशात के ताबे हैं। ऐसे लोग जरूर मरेंगे। ये खुदा कदूस का फरमान है कि ऐसे लोग जो जिस्म के ताबे होंगे, जिस्म के ताबे खुदा के दुश्मनी गर्दाना गया है, खुदा के हुक्मों को नाचीज, अपनी ख्वाहिशात को खुदा के हुक्मों के ऊपर लाने को जो उनसे है जिस्म के ताबे कहा गया है, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने को कहा गया है। ऐसे लोगों को इंतबाह किया गया है, वार्न किया गया है कि वो जरूर मरेंगे। और कलाम खुदा इसके बरक्स बयान करता है, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे, अगर हम वो रूह जो तोहफे की सूरत में इस बपतिस्मे के जरिए से आपको ये दूसरा तोहफा नायत होता है, जब ये रूह आपके अंदर दाखिल होगी तो आप जिस्म के कामों को नेस्त व नाबूद करेंगे। आप खुद से जिस्म के कामों को, अपनी ख्वाहिशात को रद्द नहीं कर पाए, आप खुद से इन ख्वाहिशात को अपने से दूर ना कर पाए। और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम कोशिश तो करना चाहते हैं, हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन हमसे बन नहीं पड़ता। कलाम खुदा बयान करता है, उठ और देर क्यों करता है, बपतिस्मा ले, ये दो चीजें तुझे मिलेंगी, और इन दो चीजों के वसीले से तेरे गुनाह माफ हुए और रूह तुझे मिली। ये रूह जो सी है जब तुझे मिलेगी तो ये तुझे नई जिंदगी में लेकर चलेगी। बहुत जरूरी है बपतिस्मा, क्योंकि आपकी नई जिंदगी का आगाज इस बपतिस्मे के जरिए से जो है वो मुमकिन ठहरता है। और जब आपको ये तोहफा मिलता है, ये रूह कुदस जो उनसे आपके अंदर आता है, जब खुदा की रूह आपको जो सी है वो तकवीत देती है, तो आप अपने जिस्म की ख्वाहिशात, अपने जिस्म की जो सी हैं, जो लज्जतें हैं, उनको नाबूद करते हैं। इस रूह के वसीले से कलाम खुदा बयान कर रहा है, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे, तो आपकी जिंदगी हमेशा की जिंदगी ठहरेगी। बहुत जरूरी है। लोग बपतिस्मे को रस्म समझते हैं। आज तक कलाम खुदा में बहुत से कलाम सुनाने वाले अफसोस, क्योंकि वो खुदा की तरफ से भेजे ही नहीं गए। उन्होंने बपतिस्मों पे जोर तो दिया, लेकिन बपतिस्मे तक पहुंचा ना पाए, बपतिस्मे को सिखा ना पाए। बपतिस्मा आपकी रूहानी जिंदगी का आगाज है, और इसी जिंदगी में जब आप दाखिल होते हैं तो रूह कुदस का तोहफा आपको मिलता है, जो आपकी तकवीत करता है, जो आपको लेकर चलता है, ताकि आप अपने जिस्म की ख्वाहिशात को खत्म कर सकें, नाबूद कर सकें, और आप जीते रहें। कलाम खुदा 14वीं आयत में फरमा रहा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। मत अपने आप को खुदा का बेटा गर्दानिए अगर आपको जो उनसे रूह कुदस नायत नहीं हुआ, क्योंकि खुदा का रूह वो नायत होने के वसीले से आप महज खुदा के बेटे ठहरेंगे। आप खुदा के बेटे कलाम खुदा के मुताबिक अपने मुंह से नहीं कहलवा सकते। कलाम खुदा के मुताबिक आप खुदा के बेटे
उसी सूरत में ठहरते हैं जब खुदा का रूह आपके अंदर आता है। और अगर खुदा का रूह आपके अंदर नहीं है तो आप खुदा के बेटे नहीं, और जो खुदा का बेटा नहीं वो अबलीस का फर्जंद गर्दाना गया है। पौलुस रसूल आपसे फरमा रहे हैं, पौलुस रसूल आपसे मिन्नत करते हैं, पौलुस रसूल आपसे दरख्वास्त करते हैं, अपने आप को बदल डालें, अपनी उस पुरानी जिंदगी से किनारा कर लें ताकि आप मर न जाएं बल्कि जीते रहें। हम रोमियो के खत 12वें बाब में आएंगे और पहली 2 आयात को देखेंगे। रोमियो के खत 12वें बाब की पहली 2 आयात कलाम खुदा से आपको बयान करती हैं। बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा के नजदीक ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। पौलुस रसूल आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, वो खुदा की रहमतें आपको याद दिला रहे हैं, वो रहमतें, वो बख्शिशें जो आप पर हुई, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा ठहरी। पौलुस रसूल कलाम खुदा के जरिए से आपसे मिन्नत करते हैं, आपको खुदा का वो कलाम सुना रहे हैं, क्योंकि वो खुदा के बंदे हैं, क्योंकि वो खुदा की तरफ से भेजे गए हैं, क्योंकि वो खुदा के मुनाद हैं। जब तक खुदा की तरफ से खुदा का मुनाद आप तक कलाम नहीं लेकर आएगा, आप किस तरह ईमान लाएंगे, किस तरह जो है अपनी नई जिंदगी में दाखिल होंगे। इसी से आप खुदा के मुनाद और शैतान के मुनाद को जानते हैं। कलाम में खुदा बयान करता है, तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे, उनकी तालीम से तुम उन्हें जान लोगे कि कौन खुदा की तरफ से है और कौन शैतान की तरफ से है, कौन खुदा के हुक्मों को मानने की तरगीब दे रहा है और कौन खुदा के हुक्मों को आपसे दूर कर रहा है। पौलुस रसूल आपसे बिन्नत कर रहे हैं, बिनती कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं, इल्तमास कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, आपको खुदा की रहमतें याद दिला रहे हैं। वो आपसे फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, अपनी ख्वाहिशात को इस दुनिया के ताबे ना रखो। कितनी उम्र है आपकी? एक शख्स भी ये नहीं कह सकता कि वो अगले लम्हे जो है सांस ले पाएगा। कितनी उम्र है आपकी? क्यों आप मरना चाहते हैं? क्यों आप जीना नहीं चाहते? कलाम खुदा के अंदर आपने पढ़ा कि जब तक आप रूह की हिदायत से नहीं चलेंगे आप नहीं जी पाएंगे, उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो पाएंगे। और ये रूह से चलना उसी वक्त मुमकिन ठहरेगा जब आप उस बपतिस्मे के जरिए से, उस इकरार के जरिए से जो आपने अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदाए कदूस के आगे रखा है, डिक्लेरेशन दी है कि आइंदा से मैं गुलामी के जुए में नहीं जुटूंगा, आइंदा से मैं आपकी पैरवी करूंगा, मुझे तकवीत दें। खुदा वादा करते हैं, वो कहते हैं, जा मैंने तेरे गुनाह इतने दूर कर दिए जितना पूर्व पश्चिम से दूर है। जा मैंने तेरे गुनाह गो वो किरमजी थे इतने दूर कर दिए कि वो सफेद ऊन की माने ठहरे। जा मैं आज से तेरे अंदर अपनी रूह डालूंगा जो तुझे लेकर चलेगी।
اور اس जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से आपको नई अक्ल दी गई, नई समझ दी गई है। जो आपने पुरानी जिंदगी अपनी गुजार ली अपने कलाम सुनाने वालों की नासमझी के बाइस, अपने माँ बाप की नासमझी के बाइस, अपनी नासमझी के बाइस, कलाम खुदा से दूरी के बाइस, अब खुदा का कलाम अब आप तक आ पहुंचा, आपको नई अक्ल दी गई। पालूस रसूल खुदा की रहमतें याद दिलाकर आपसे इल्तमास कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं, नई अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। काश हम पालूस रसूल की इस बिनती को, इस दरख्वास्त को, इस इल्तमास को रद्द ना करें और मौत के हकदार न ठहराए जाएं। कलाम खुदा आपसे बयान करता है, 8वें बाब में आपने पढ़ लिया, 8वें बाब में आपने पढ़ लिया कि वही लोग जो खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद कहलाएंगे, और सिर्फ खुदा के फर्जंदों को जो है वो रास्तबाजी का ताज बख्शा जाएगा। सिर्फ खुदा के फर्जंदों को जो है बादशाहत में दाखिल किया जाएगा। आए हम इस इकरार की तरफ बढ़ें, हम इकरार करें कि आइंदा से गुलामी के जुए में नहीं जुटेंगे, ताकि खुदा का पाक रूह हमें मिल सके। खुदा का तोहफा है, इकरार आपके जिम्मे है। आप इकरार के लिए उठें, खुदा अपना तोहफा देने के लिए तैयार है। कलाम खुदा हमें बयान करता है। हम एक मरतबा फिर रोमियो के खत 8वें बाब में आते हैं और 8वीं आयत को देखते हैं। कलाम खुदा बयान करता है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। आप जिस्म के ताबे रहकर, अपनी ख्वाहिशात के ताबे रहकर आप खुदा कदूस को खुश नहीं कर सकते। आपको खुदा कदूस को खुश करने के लिए, खुदा कदूस को राजी करने के लिए खुदा कदूस की बातों को, उनके कलाम को मनोअन कबूल करना होगा। हम 9वीं आयत में देखते हैं, कलाम खुदा आज आपको बयान कर रहा है, कलाम खुदा आपको बता रहा है आप चुने हुए हैं, आपने इस कलाम को कबूल किया है, आपने अपने गुनाह का एहसास किया है, आपने खुदा कदूस के आगे गिरियाजारी की है, आप रोए हैं, चिल्लाए हैं, दरख्वास्त की है, मिन्नत की है कि मेरे गुनाह मेरे से हटा लें। खुदा कदूस रोमियो 8 बाब 9वीं आयत में आपको याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। आप उस वक्त जिस्मानी नहीं ठहराए जाएंगे जब खुदा का रूह आपको मिलेगा। खुदा का रूह आपको कब मिलेगा? खुदा का रूह इस बपतिस्मे के जरिए से, जिसमें आपकी तौबा कबूल हुई और आपके उस इकरार के नतीजे में खुदा का रूह आपके अंदर आया। बपतिस्मा नहायत जरूरी है, इसीलिए ये आपकी रूहानी जिंदगी का आगाज ठहरता है। काश कलाम सुनाने वाले बपतिस्मे को जान पाते। वो जान कैसे सकते अगर वो खुदा की तरफ से मुनाद ठहरे ही नहीं। खुदा का मुनाद खुदा की बातें बताएगा, खुदा का मुनाद खुदा की बातें सिखाएगा, खुदा का मुनाद आपको खुदा की तरफ लेकर चलेगा। कलाम खुदा का एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ खुदा के रूह की हिदायत से है।
کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے آپ جسمانی نہیں، آپ روحانی ہیں۔ خدا قدوس آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ جسم کے نہیں ہیں۔ یہ کلام آپ نے قبول کیا ہے، اس کلام کو آپ نے جانا ہے، اس کلام کی بدولت آپ نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، مجھ سے معافی طلب کی ہے۔ اب آپ جسمانی نہ رہے بلکہ روحانی ہیں، بشرطے کہ آپ میں خدا کا روح بسا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ ان کا نہیں۔ کیا ہی خوبصورت ورس ہے۔ For anyone who doesn't have the spirit of the Messiah doesn't belong to him. You doesn't belong to Messiah if the spirit of Messiah is not in you. ذہن میں رکھیے گا، do not call yourself a disciple of Messiah. The scripture plainly tells you you do not belong to Messiah if the spirit of Messiah is not in you. اور خدا کا روح اسی وقت آپ کے اندر داخل ہوتا ہے جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں، اور اس بپتسمے کے نتیجے میں خدا قدوس یہ روح آپ تک دیتے ہیں۔ آپ کو اقرار کرنا ہوگا، آپ کو نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوگا۔ آپ یہاں تک پہنچ کے معافی طلب کر کے واپس نہیں ہو سکتے۔ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے اپنی زندگیاں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ کلام خدا آپ کو خوشخبری کا پیغام دے رہا ہے۔ کلام خدا آپ سے کہہ رہا ہے اب آپ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہیں۔ کتنی مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، سیکھا ہوگا۔ آج خدا کے کلام نے آپ تک یا آپ کے کانوں کے اندر، آپ کے دل کے اندر اس بات کو اتار دیا، آپ کو یہ خوشخبری سنا دی کہ آپ جسمانی نہیں رہے، آپ روحانی ہو گئے ہیں، بشرطے کہ اب آپ اس روح کو پالیں۔ اس روح کو پانے کے لیے آپ کو اس تحفے کو حاصل کرنے کے لیے بپتسمہ لینا ہوگا تاکہ آپ کے اندر مسیح بس سکے۔ اگر آپ کے اندر یہ روح نہیں ہے تو کلام کہتا ہے آپ کا مسیح آپ سے دور ہو گیا، وہ قربانی آپ سے جاتی رہی، آپ نے اس قربانی کو رد کر دیا۔ اگر آپ نے یہیں سے اپنے جسم کی خواہش کے مطابق اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے وقف کر دیا۔ For anyone who doesn't have the spirit of Messiah doesn't belong to him. This is very vital. This is very important. ہم نے توبہ طلب کی، ہم نے اپنے آپ کو سرنگو کیا۔ We surrendered. We confess. We repent. اب اٹھ، دیر کیوں کرتا ہے؟ بپتسمہ لے۔ کلام خدا آپ کو تقویت دے رہا ہے تاکہ خدا کا روح آپ میں سرایت کر سکے۔ اگر خدا کا روح آپ کے اندر نہیں، you don't belong to Messiah. You are not the disciple of Messiah. اور اگر آپ مسیح کے شاگرد ہی نہیں تو ان کے ساتھ اس ضیافت میں، خدا کی بادشاہت میں داخل ہی نہیں ہونے پائیں گے۔
क्या ही खूबसूरत और सादा कलाम है। हम एक और हवाले में आते हैं, कुलसियों के खत पहला बाब और उसकी 27वीं आयत में। कुलसियों का खत पहला बाब और उसकी 27वीं आयत। कलाम खुदा हमें क्या सिखाता है? कलाम खुदा हमें बयान करता है, जिन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहते हैं। Because of the spirit of Messiah, he lives in you. And the spirit of Messiah can only dwells in you. अगर आप बपतिस्मा लेते हैं, इकरार करते हैं कि आइंदा से मैं उस रूह के ताबे रहूंगा जो इस बपतिस्मा के जरिए से, जो है खुदा आपके इस वादे के नतीजे में मुझे मिलेगी। आप कदम बढ़ाएं तो सही, आप उठें तो सही, इस कायली से अपने आप को निकालें तो सही, देखें खुदा की रूह आपको किस तरह लेकर चलती है आपकी इस नई रूहानी जिंदगी के अंदर। कलाम खुदा आपको बार बार मौका दे रहा है। हम देखते हैं जब ये रूह आपके अंदर दाखिल हो तो किस तरीके से आपको लेकर चलती है। हम गलीतियों के खत दूसरे बाब में आएंगे और उसकी 20वीं आयत का मुतालिया करेंगे। गलीतियों 2 बाब और 20वीं आयत कलाम खुदा से हमें यूं सिखाती है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिन्होंने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। You belong to Messiah if Messiah lives in you. And Messiah will only lives in you if you be led by the Spirit of Messiah. Or you can only be led by the Spirit of Messiah if you declare that I would not live according to the life I was living before. I would live according to the Spirit now. कलाम खुदा गलीतियों 2 बाब 20वीं आयत में आपको बयान कर रहा है कि आपकी पुरानी जिंदगी जाती रही, आप इस बपतिस्मे के वसीले से मसाया के साथ मसलूब हो गए हैं। आपकी पुरानी जिंदगी दफन हो गई है और इसीलिए कलाम खुदा के अंदर आपको ये कहा गया, आपसे ये बयान किया गया कि आप अब जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हैं। एक एक लफ्ज, एक एक हरफ लड़ी है, एक चेन है। कलाम खुदा, खुदा का जिंदा कलाम जिसके अंदर तकरार नहीं। ऐसे ही नहीं आपको कह दिया गया कि अब आप जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हैं, इसलिए कहा गया क्योंकि आप मसाया के साथ मसलूब होते हैं। आपकी पुरानी जिंदगी, आपकी जिस्मानी जिंदगी मसाया के साथ दफन होती है और आप नई जिंदगी में दाखिल होते हैं। वो जिंदगी जिसमें अब आप जिस्म की हालत में नहीं रहे बल्कि मसाया आपके अंदर अब मौजूद है, उस रूह के वसीले से जो आपको इस तोहफे के नतीजे में अनायत हुई, जो आपने बपतिस्मा के वक्त इकरार किया था। उठें, अब देर क्यों करते हैं? बपतिस्मा लें और अपने गुनाहों को धो डालें। कलाम खुदा आपको बयान फरमाता है, हमें
अपने आप को खुदा के लिए तैयार करना होगा। हमें अपने आप को उस पाक रूह के लिए जिसका वादा खुदा ने किया है तैयार करना होगा। हमें देखना होगा कि हम जो है कलाम खुदा को सीखना चाहते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक या उस रूह के मुताबिक जो खुदा कदूस की तरफ से हमें अनायत होने वाली है। अगर हम उठें, देर न करें, इकरार करें और उस रूह के तहत अपनी ज़िंदगी को बसर करें। आज हम इसी हद तक रहेंगे। हम अगली दफ़ा ये देखेंगे कि कलाम खुदा का ये रूह जब आप में दाखिल होगा तो आपकी ज़िंदगी जौन सी है वो किस तरह तब्दील होगी, किस तरह आपकी रूहानी ज़िंदगी का आगाज़ होगा। खुदा कदूस हर उस शख्स को जो खुदा का चुना हुआ है, जो यहाँ तक पहुँच चुका है, मुड़ने ना पाए बल्कि आगे बढ़कर, उठकर, दौड़कर अपने आप को उस रूह के ताबे करने के लिए चिल्लाता हुआ, नारे मारता हुआ अपने आप को पाए, ताकि खुदा का रूह उसके अंदर जुम्बिश फरमाए। खुदा का पाक कलाम आप सबको अपनी बरकतों से नवाजता चला जाए। आमीन।